Assalamualaikum to my all the viewers, learners and subscribers. I hope you all are fine and doing well. You all are warmly welcomed in English Learning Home. Guys, as you all know that we have created this channel to teach the students English from basic to advanced. The main purpose of creating this channel is to enhance the confidence of learners and to boost their confidence to speak English fluently. What I want to make English much familiar in all students who are very desire to be the good speaker, to be the good writer, but they feel hesitate in group of people and they do not speak even if they have a good knowledge about grammar. So guys, what I want to make you good speaker, and I wanna increase, or you can say that I want to boost up your confidence by providing you skills about English language in such a convenient way so that you will not have to move another websites or another channel. So guys, our channel name is English Learning Home, as you can see in my screen. Actually, my channel, my course consists on 3 parts: basic grammar, pre-advanced grammar and advanced grammar. As far, we people have covered basic grammar, in which we covered many of the basic structures, basic uses, tenses, countable and uncountable nouns, articles and much more. Now this recently we people have been covering pre-advanced grammar. सो गाइज़, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम इंग्लिश लर्निंग होम है और मेरा मेन पर्पस इस चैनल को क्रिएट करने का ये है कि वो स्टूडेंट्स जो अपनी इंग्लिश को बूस्ट करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को इन्हांस करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं बाय स्पीकिंग इंग्लिश, उनके लिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है ताकि उन्हें किसी सेंटर विजिट नहीं करना पड़े. एंड देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ क्रिएटिंग दिस चैनल. इस प्लेटफॉर्म के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. बाय बीइंग एट योर होम यू कैन लर्न इंग्लिश ईजिली. घर बैठे हुए आप इंग्लिश ईजिली सीख सकते हैं. किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी अगर आपके माइंड में है तो आप अपनी क्यूरीज को कमेंट सेक्शन में पुट करें. मैं कोशिश करूँगी कि आपके तमाम क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करूँ. इंग्लिश लैंग्वेज आपको यहाँ सिखाने का पर्पस ये है कि वो स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक्सपेंसेस को, लैंग्वेज के सेंटर्स के एक्सपेंसेस को जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पर आएँ और सीखें, क्योंकि ये वो चैनल है जहाँ आपको A to Z लैंग्वेज सिखाई जाएगी. मतलब आपके बेसिक से एडवांस तक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे. पहला जो हमारा फेज था वो बेसिक ग्रामर का था, जो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं. अभी हम कवर कर रहे हैं प्री एडवांस्ड ग्रामर को. तो अगर आपने अभी तक मेरा बेसिक ग्रामर वाला फेज नहीं देखा है तो काइंडली आप चैनल को ज़रूर विजिट कर लें. वहाँ पर तमाम वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी हैं. तमाम लेक्चर्स को देखें. हार्डली लेक्चर 13 to 15 मिनट्स के हैं. आई डोंट थिंक कि आपका टाइम वेस्ट होगा अगर आप लेक्चर्स को सुनते हैं. सो इंशाल्लाह यू पीपल विल बी हैविंग गुड नॉलेज अबाउट ग्रामर और आप कुछ ना कुछ न्यू लर्न करेंगे हर लेक्चर में. In case of having any question, you can write down your queries in comment section. I will try my best to respond you as soon as possible. So guys, what our mission is? Our mission is to learn English. So let's learn English course. It's time to learn English. Okay, so guys, if anyone of you is new here, who is watching first time my channel, you are humbly requested, don't forget to subscribe and try to share the link of my channel as much as you can in your colleagues, relatives, friends, siblings, cousins, so that they may get benefit of इट. गाइज, अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें. अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स, कज़न्स, कलीग्स में, सिबलिंग्स में, सब में लिंक को शेयर करें ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठा सकें. वीडियो को स्किप नहीं किया करें, काइंडली मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं आपका मेन पॉइंट वहाँ से मिस हो जाता है, आपको लेक्चर समझ नहीं आता है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू मस्ट ट्राई टू वॉच complete video without skipping
it. So let's move towards our today's lecture. ओके सो गाइस, आज का हमारा लेक्चर है पैसिव वॉइस के बारे में. एक्टिव वॉइस मतलब सिंपल टेंसेस जो होते हैं वो हम कवर कर चुके हैं हमारे बेसिक ग्रामर में. प्री एडवांस ग्रामर में हम पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे. सो गाइस, यू पीपल मस्ट हैव आइडिया दैट व्हाट इज पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस को ओवरऑल समझने से पहले हमारे पास आइडिया होना चाहिए सॉरी कि पैसिव वॉइस होता क्या है. सो एक्टिव वॉइस टेल अस what a person or thing does. The subject performs the action on the subject. Okay, let me repeat it. Okay, so पहले हम एक्टिव वॉइस को अंडरस्टैंड करते हैं. एक्टिव वॉइस टेल्स अस what a person or thing does. इस चीज़ को समझिए आप. एक्टिव वॉइस हमें क्या बताता है कि पर्सन और जो चीज़ है वो क्या करता है. मतलब एक्टिव वॉइस में हम बात करते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन के बारे में. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एक्टिव वॉइस में हम किसके बारे में बात करते हैं? डूअर ऑफ एन एक्शन के बारे में, काम करने वाले के बारे में. द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, वर्ब ऑन द ऑब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म करता है. ओके, सो व्हाट वी डू इन एक्टिव वॉइस, वी प्रिफर द सब्जेक्ट. हम सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं. एंड वी टॉक अबाउट द डूअर ऑफ एन एक्शन. यू कैन सी द एग्जाम्पल. आना पेंटेड द हाउस. आना ने हाउस को पेंट किया. हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? आना के बारे में, काम करने वाले के बारे में. तो एक्टिव वॉइस में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ जाता है, जबकि पैसिव वॉइस में स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आता है. ओके, नाउ इन पैसिव वॉइस टेल अस व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग. पैसिव वॉइस हमें बताता है कि क्या हुआ है. आर यू गेटिंग? एक्टिव वॉइस हमें बताता है किसने किया है, जबकि पैसिव वॉइस हमें बताता है कि क्या हुआ है. मतलब एक्टिव वॉइस में हम प्रेफरेंस देते हैं सब्जेक्ट को, डूअर ऑफ एन एक्शन को, जबकि पैसिव वॉइस में हम प्रेफरेंस देते हैं रिसीवर ऑफ एन एक्शन को, मतलब ऑब्जेक्ट को. एक्टिव वॉइस में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है, जबकि पैसिव वॉइस में स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आता है. यू कैन सी द एग्जाम्पल. द हाउस वॉज पेंटेड बाय आना. घर को पेंट किया गया आना के जरिए. अच्छा, यहाँ पे देखिए हमने स्टार्टिंग में किसके बारे में बात की? काम करने वाले के बारे में, या जिसके ऊपर काम हुआ उसके बारे में? ऑब्वियसली यहाँ पे हमने बात की जिसके ऊपर काम हुआ है. मतलब हम यहाँ बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, नॉट अबाउट सब्जेक्ट. ठीक है, स्टार्टिंग में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसको रखते हैं जिसके ऊपर काम हुआ है, ना कि उसको जिसने काम किया है. एंड विदाउट सब्जेक्ट इट मे स्टैंड इन इट्स मीनिंग. पैसिव वॉइस अपनी मीनिंग स्टैंड कर सकता है विदाउट सब्जेक्ट भी, जबकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है. लेट सपोज अगर मैं कहती हूँ हाउस वॉज पेंटेड, फुल स्टॉप, घर को पेंट किया गया था. यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि किसने पेंट किया था. हमें सब्जेक्ट जानना ज़रूरी नहीं है. हमें क्या ज़रूरी है कि क्या हुआ था, किस पर हुआ था. मतलब ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है, जबकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है. यू कैन सी द अनदर एग्जांपल. द टीचर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चन. टीचर हमेशा शागिर्दों के सवालात को जवाब देती है. अब देखिए जवाब देने वाली कौन है? टीचर. तो टीचर कौन है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ रहा है, मीन्स इट इज एक्टिव वॉइस. द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय द टीचर. शागिर्दों के सवालात को जवाब दिया जाता है टीचर के ज़रिए. अब यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे कि जवाब कौन देता है, हम ये बात कर रहे हैं कि किस पे काम होता है? शागिर्दों के सवालात पर. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस इज ऑब्जेक्ट, और जब इस ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाता है दैट बिकम पैसिव वॉइस. व्हाट इज अनदर एग्जांपल? अली पोस्टेड द वीडियो ऑनलाइन. अली ने ऑनलाइन वीडियो पोस्ट की. The video was posted online by Ali. Now see in first example, काम किसने किया? अली ने. मतलब बात किसके बारे में हो रही है? सब्जेक्ट के बारे में. तो हम सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में पुट कर रहे हैं. इट मीन्स दिस इज एक्टिव वॉइस. द वीडियो वॉज पोस्टेड. वीडियो को पोस्ट किया गया. अब हम वी पीपल हैव नथिंग टू डू विद हु डज दिस वर्क. ठीक है, हमें इस चीज़ से कुछ नहीं है कि किसने काम किया. हमारा पैसिव वॉइस में पर्पस होता है जानने का कि काम किसके ऊपर हुआ. मीन्स वी पीपल हैव टू फोकस ऑन
object rather than subject. So whenever you people are talking about what is done, ठीक है, क्या हुआ है, to someone or something, किसी चीज़ पर या किसी शख्स के साथ, तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं. बट व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, सो दिस इज एक्टिव वॉइस. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. सिंपल है कि एक्टिव वॉइस में हम बात करते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन के बारे में. सॉरी, हम प्रेफरेंस भी देते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन को. स्टार्टिंग में हम सब्जेक्ट पुट करते हैं, काम करने वाले पे हम ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, इसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं. जबकि पैसिव वॉइस इसका रिवर्स है. पैसिव वॉइस में हम बात करते हैं जिसके ऊपर काम होता है, मतलब रिसीवर ऑफ एन एक्शन के बारे में. हम सब्जेक्ट को प्रेफरेंस नहीं देते हैं. विदाउट सब्जेक्ट भी हमारा टेंस कंप्लीट हो जाता है और हम स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट पुट करते हैं, लाइक व्हाट इज डन टू समवन और समथिंग. हमारा कंप्लीटली फोकस होता है कि क्या हुआ है किसी के साथ या किसी शख्स के साथ या किसी चीज़ के साथ. सो दिस इज नॉन एज पैसिव वॉइस. ओके, सो गाइस उसके बाद क्वेश्चन आता है वेयर इज यूज्ड पैसिव वॉइस. ठीक है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हम एक्टिव वॉइस के जरिए भी अपनी बात कह सकते हैं तो फिर पैसिव वॉइस कहाँ इस्तेमाल किया जाता है. इज इट मैंडेटरी टू यूज पैसिव वॉइस when we people are having way to speak in active voice. जब हम अपनी बात, अपना मैसेज एक्टिव वॉइस के ज़रिए कन्वे कर सकते हैं तो पैसिव वॉइस हम क्यों यूज़ करते हैं. लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि सना रीड्स बुक. सना किताब पढ़ती है. व्हाट इज दिस, एक्टिव और पैसिव? ऑब्वियसली एक्टिव है. क्यों? हमने शुरू में सना के बारे में बात की है और सना डूअर ऑफ एन एक्शन है. सो दिस इज एक्टिव वॉइस. नाउ आई से दैट बुक इज रेड बाय सना. किताब पढ़ी जाती है सना के जरिए. यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बात की बुक के बारे में, जबकि बुक हमारा ऑब्जेक्ट है. तो जब स्टार्ट में आप प्रेफरेंस दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को, आप बात कर रहे हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है, रिसीवर ऑफ एन एक्शन के बारे में, सो दिस इज पैसिव वॉइस. तो जब दोनों तरीके से बात की जा सकती है, एक्टिव वॉइस के जरिए हम अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, सो व्हाट इज नीड टू यूज पैसिव वॉइस. लेट्स लर्न हियर. द पैसिव वॉइस इज यूज्ड टू शो इंटरेस्ट इन द पर्सन और ऑब्जेक्ट that experience an action rather than the person or object that performs the action. Now understand this thing. पैसिव वॉइस हम क्यों यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं अपना इंटरेस्ट शो करवाने के लिए कि हमारा इंटरेस्ट जिसने ये काम किया है उसमें नहीं है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मतलब हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि काम किसने किया है. हमारा इंटरेस्ट है कि काम किसके ऊपर हुआ है. मतलब हमारा इंटरेस्ट है कि काम जिस ऑब्जेक्ट पे हुआ है उसके बारे में बात करना. सो यहाँ इसी वजह से हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं. इन अदर वर्ड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पर्सन बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और पर्सन बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. जो बहुत ज़्यादा हम जिस चीज़ को इंटरेस्ट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, मतलब हमारा फोकस उस पर नहीं है जिसने काम किया है, हमारा फोकस उस पर है जिसके ज़रिए वो काम हुआ है, वो हमारे सेंटेंस का, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है. लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि सना डेकोरेट्स माय रूम. ओके, सना मेरा रूम डेकोरेट करती है. अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? काम करने वाले के बारे में. ठीक है, सो दिस इज एक्टिव वॉइस. नाउ इन अदर वर्ड्स मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि रूम किसने डेकोरेट किया है. माई पर्पस इज़ टू गेट माई रूम डेकोरेटेड. सो व्हाट आई से, मेरा पर्पस है कि मुझे बस अपना रूम डेकोरेट हुआ चाहिए, मुझे इससे कोई नहीं है कि किसने किया है. सो माई रूम इज़ डेकोरेटेड बाय सना. मेरा रूम डेकोरेट किया जाता है सना के ज़रिए. अब अगर मैं बाय सना भी नहीं बोलूँ, सो माई सेंटेंस इज़ कम्प्लीटेड. माई रूम इज़ डेकोरेटेड. मेरा रूम डेकोरेट किया जाता है. मतलब मेरा पर्पस किससे है? जिसके ऊपर काम हुआ है. काम किसके ऊपर हुआ है? रूम के ऊपर. सो रूम इज़ ऑब्जेक्ट. मेरा पर्पस इससे नहीं है कि किसने काम किया है. तो जब भी आप कोई ऐसा जुमला कहना चाहते हैं जिसमें आप डूअर ऑफ एन एक्शन को छुपाना चाहते हैं या डूअर ऑफ एन एक्शन को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं जितनी आप ऑब्जेक्ट को देना चाहते हैं, वहाँ पे हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं. ओके, सो गाइस उसके बाद बात कर लेते हैं हम हाउ टू आइडेंटिफाई पैसिव वॉइस.
ठीक है, आपके सामने अगर दो जुमले रखे हुए हैं एक्टिव और पैसिव, तो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि वेदर इट इज़ एन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। टू आइडेंटिफाई पैसिव वॉइस, लुक एट व्हाट हैपेंड एंड लुक एट हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इट। If the person or thing responsible for doing the action is either omitted or occurs in the sentence after the thing that happened, and if you see a past participle street after the form of to be, it is passive voice. It is quite easy. तो easy करके समझते हैं, ठीक है। पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करने का बहुत ईजी तरीका है। What you have to do, आपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फोकस करना है। पहले वर्ड को देखना है कि वेदर इट इज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आपने इसको देखना है कि ये डूअर ऑफ एन एक्शन है या रिसीवर ऑफ एन एक्शन। काम करने वाला ही जिस पे काम हुआ है ये वो है। अगर वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन है सो इट इज़ 100% पैसिव वॉइस। उसके बाद आपने टू बी फॉर्म देखनी है। टू बी फॉर्म मीन्स इज एम आर या वॉज वर या बीइंग, जो मैं अपने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। अगर टू बी फॉर्म है और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। अब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को। अगर आप स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं, रिसीवर ऑफ एन एक्शन को, उसके बाद टू बी फॉर्म के बाद पास्ट पार्टिसिपल है, सो दिस इज 110% पैसिव वॉइस फॉर्म। ओके, सो पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई करने का बहुत इजी तरीका है कि उस स्ट्रक्चर को आपने फोकस्ड करना है। स्टार्टिंग में what you have to do, what happened, and look at who was responsible for doing it. If the person or thing responsible for doing the action is either omitted or occurs in the sentence, ठीक है, हमने सेंटेंस को देखना है कि अगर उसमें काम करने वाला या तो मौजूद ना हो, ठीक है, क्योंकि हम पैसिव वॉइस में फोकस करते हैं जिस पे काम हो, या अगर मौजूद भी है तो सेंटेंस के लास्ट में हो, स्टार्टिंग में नहीं हो। स्टार्टिंग में जिस पर काम हो वो हो और उसके बाद टू बी फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल मतलब वो की थर्ड फॉर्म हो, सो दैट इज नॉन एज पैसिव वॉइस। सो दिस इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई पैसिव वॉइस। गाइस, उसके बाद हम बात कर लेते हैं पैसिव प्रेजेंट फार्मूला या स्ट्रक्चर। फार्मूला क्या है? फार्मूला इज़ क्वाइट इजी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पैसिव वॉइस की स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट पुट करते हैं, ऑब्जेक्ट आपने पुट करना है, उसके बाद टू बी फॉर्म। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो बी की फॉर्म वॉज वर नहीं यूज़ कर सकते, बीन भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, हम बी भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, बीइंग भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इज एम आर। ऑब्जेक्ट इज एम आर एंड एज यू ऑल नो कि तमाम पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, तो यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। सो एज यू कैन सी द एग्जाम्पल, क्रिकेट इज़ प्लेड, क्रिकेट खेली जाती है। अब यहाँ पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं कि कौन क्रिकेट खेलता है, किसके ज़रिए क्रिकेट खेली जाती है, हमारा फोकस है क्या खेला जाता है, क्रिकेट। सो क्रिकेट इज़ ऑब्जेक्ट, क्रिकेट सिंगुलर है तो इसके साथ इज एंड आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज प्लेड। सो गाइस, अब हम पढ़ने हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? मीन्स दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव लाइक आई, वी, दी और एनी नेम। ऑब्जेक्ट का दरअसल जो मकसद है वो तो ये है कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन जिसके ऊपर काम हो, लेकिन पैसिव वॉइस में अगर आप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखें तो ये शुरू में आता है, बिल्कुल स्टार्ट में आता है, तो ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। मतलब पैसिव वॉइस का इसे आप सब्जेक्ट कह सकते हैं, बट द मैन एंड द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डूअर ऑफ एन एक्शन जिसके ऊपर काम हो। गाइस, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इज एम आर के बारे में। एज यू ऑल नो, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इज को यूज़ करते हैं सिंगुलर के साथ, लाइक ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नेम के साथ। एम इस्तेमाल किया जाता है आई के साथ एंड वी यूज़ एम विद आई। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल। और आर हम यूज़ करते हैं प्लूरल के साथ, दे, वी और एनी प्लूरल नेम। तो सिंपल है कि आप ही को यूज़ इज़ यूज़ करते हैं ही, शी, इट और विद एनी सिंगुलर नेम। आई यूज़ करते हैं एम के साथ, और जबकि आर यूज़ होता है यू, वी, दे और विद एनी प्लूरल नेम।
गाइस उसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्ब को। वर्ब क्या होता है? अ वर्ड विच शोज एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। कोई भी ऐसा अल्फाज जो आपको एक्शन के बारे में बताता है, किसी काम का बताता है, किसी भी एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। ओके, विच शोज एन एक्शन, कोई ऐसा लफ्ज जो एक्शन को शो करवाता है उसे वर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल, डांस, रीड, लिसन, डू, प्ले, स्लीप, एनीथिंग। ओके गाइस, हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको एक्टिव वॉइस दे दिए जाते हैं, यू विल बी आस्क्ड टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, देन हाउ विल यू कन्वर्ट इट। आपको एक्टिव वॉइस दे दी जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, तो आप उसे कैसे करते हैं? सो गाइस, आई थिंक आई हैव टोल्ड यू, बट लेट मी टेल यू इन डिटेल। यू कैन सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, वी कुक फूड, हम खाना बनाते हैं। हम स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? वी, मतलब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, मैटर ऑफ डिस्कशन के बारे में, ये डूअर ऑफ एन एक्शन के बारे में। सो दिस इज एक्टिव वॉइस। दूसरा वे इसको अंडरस्टैंड करने का ये है कि यहाँ पे बी की कोई फॉर्म नहीं है, इज एम आर नहीं है, सो मीन्स दिस इज एक्टिव वॉइस। तीसरा एक और आपको क्लू मिल सकता है कि हम हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है कुक, सो दिस इज एक्टिव वॉइस। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। स्टेप टू मैक, स्टेप्स को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट वी टेक द ऑब्जेक्ट विच इन दिस केस इज फूड। सबसे पहले आपको इस जुमले में ऑब्जेक्ट को उठाना है, क्योंकि हम पैसिव में किसके स्टार्ट में रखते हैं? ऑब्जेक्ट को। सो वी कुक फूड, काम किसके ऊपर हो रहा है? बनाने का, कुकिंग करने का, फूड के ऊपर। सो फूड को आप स्टार्टिंग में रखते हैं। ओके, फूड हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के बाद हम इज एम आर में से कोई एक यूज़ करते हैं, फिर वो की थर्ड फॉर्म। सो फूड के साथ ऑब्वियसली सिंगुलर है तो इज यूज़ करेंगे, इज आपने पुट कर दिया, फूड इज। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? कुक। कुक की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगी, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो फूड इज cooked. You can see in the last of this screen the passive voice is written. आप देख सकते हैं स्क्रीन के आखिर में passive voice लिखा हुआ है. So this is the way of converting or the way of making active voice into passive voice. Okay, so guys you can see the examples. I write a letter. मैं लेटर लिखती हूँ. यहाँ पे आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को तलाश करना है. Object is a letter. A letter is written by me. Okay, so guys यहाँ पर अगर आपको एजेंट मिल जाता है, सब्जेक्ट मिल जाता है, तो उसको आप लास्ट में पुट करेंगे बाय के बाद. पहले आपने ऑब्जेक्ट को उठाना है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा a letter. A letter के साथ is और इसके बाद past participle form means third form of verb. So write की third form है write, wrote, written. A letter is written. अब यहाँ पे बच गया आई जो हमारा सब्जेक्ट था, इसको हम लास्ट में पुट करेंगे पैसिव वॉइस में बाय के बाद. बाय मी. ही कुक्स फूड. फूड इज कुक्ड बाय हिम. दे प्ले फुटबॉल. फुटबॉल इज प्लेड बाय देम. पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट लास्ट में पुट होता है और वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है. तो दे का दे नहीं रहेगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम. You can find the objective and subjective case easily by clicking on Google. Google कर लें आप कि subjective और objective क्या होते हैं subjects, वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी. So you can memorize them or you can learn them. They play football. Football is played by them. She makes cake. Cake is made by her. So these are the examples. I hope you enjoyed today's class. This was very interesting and a detailed class. In case of having any question, you can write down your question in comment section. I will try my best to respond you guys. Once again I am telling you, don't forget to share and try to watch video completely so that you will not have to miss your single point. That's all about today's class. Thanks everyone for watching the video. Allah Hafiz. Take care.